में 4 जजों का ये फैसला होगा। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला। एएमयू को अक़लियतों का इदारा मानने से इनकार कर दिया गया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने का लगाया था स्टे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पढ़ा जा रहा है और अब से कुछ सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजेआई समेत 4 जजों का ये फैसला आना है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। एएमयू को अक़लियतों का इदारा मानने से इनकार कर दिया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने पर स्टे लगा दिया था, जिसको लेकर आज फैसला आएगा। अब देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहता है। सीजेआई समेत 4 जजों का यह फैसला होगा। तो एएमयू को अक़लियती का दर्जा मिल पाता है, अक़लियती इदारों का दर्जा मिल पाता है या नहीं, ये आज साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी स्टे लगाया गया है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2005 में कि उसे दर्जा देने से इनकार कर दिया था, अक़लियती दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था एएमयू को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। अब आज ये फैसला आना है और देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कहता है। एएमयू को अक़लियती दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। और फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजेआई समेत 4 जजों का ये फैसला होगा। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। एएमयू को अक़लियतों का इदारा मानने से इनकार कर दिया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने पर स्टे लगा दिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस फैसले को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। We have clarified that it is not necessary to prove that administration rests with the minority to prove that it is a minority educational institution, because the very purpose of Article 31 is to grant special rights on administration as a consequence of establishment. To do otherwise would amount to converting the consequence to a precondition. The right to administer is guaranteed to minority educational institutions to enable them to possess sufficient autonomy to model the educational institution according to the educational values that the community wishes to emphasize. It is not necessary that the purpose can only be implemented if persons belonging to the community helm the administrative affairs. This is so particularly because a minority institution may wish to emphasize secular education. The test to be adopted by the court is whether the administrative setup of the educational institution affirms the minority character of the institution. If the administrative structure of the educational institution does not reflect its minority character, or when it does not elucidate that the educational institution was established to protect and promote the interests of the minority, it may, however, be reasonably inferred that the purpose was not to establish an educational institution for the benefit of the minority community. We may specifically deal with a scenario of an educational institution established before the commencement of the Constitution. The test of administration should be evaluated in presentile, that is, on the date of the commencement of the Constitution. An institution to be a minority institution must satisfy the criteria of being administered as a minority institution on the date of the commencement of the Constitution and being a minority institution on the date of formation. Even if an educational institution was established by the minority for the purpose of the community, we must assess the impact of any subsequent events that alter the character of the institution before the commencement of the Constitution. The court may, on a holistic reading of the statutory provisions relating to the administrative setup of the educational institution, deduce if the minority character of the purpose of establishment was relinquished upon incorporation. The question is whether the regulatory measures wrest the administrative control from the founders of the institution. This is a question of fact which must be determined on the facts of each case. The court must make that determination upon a comprehensive analysis of the administrative framework, which includes a host of factors such as the representation of the interests of the community in the administrative setup. The above indicia must be proved through the submission of cogent material. Reliance must be placed on primary sources such as office documents, letters and resolutions, or memorandums issued to implement the resolution.
Secondary sources must be only used to corroborate the primary sources. The onus to prove that the educational institution was established by a minority is on the claimants. The view taken in Aziz Basha that an educational institution is not established by a minority if it derives its legal character through a statute is overruled. The question of whether AMU is a minority educational institution must be decided based on the principles laid down in this judgment. The papers of this batch of cases shall be placed before the regular bench for deciding whether AMU is a minority educational institution and for the adjudication of the appeal from the decision of the Allahabad High Court in Malay Shukla's case after receiving instructions from the Chief Justice on the administrative side. ज्वाइन रखा मैंने तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा आज दिया जाएगा या नहीं, अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। फिलहाल ये फैसला पढ़ा जा रहा है। 7 जजों की बेंच ये फैसला करेगी। 4-3 से ये फैसला आ सकता है। तो एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। determine the correctness of the question arising from the decision of this court on Aziz Basha, which had ruled against the minority status so to be accorded to AMU. Second, to determine question 3A formulated in TMA 5. And third, whether the decision of this court in Professor Yaspal versus Chhattisgarh State of Chhattisgarh and the amendment in 2010 in National Commission for Minority Education Institute Act 2004 have any bearing on the aforesaid question formulated. The fulcrum of this reference rolls around the interpretation of Article 30 of the Constitution of India, which deals with the right of minorities to set up educational institutions. We have had the benefit of perusing the erudite majority opinion authored by Honorable the Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud. While the said opinion comprehensively addresses each issue with depth and clarity, we have expressed a differing view on the interpretation of certain aspects given the significant constitutional implications involved. Recognizing the weight of these issues, we have chosen to offer our own perspective, though we acknowledge the thoroughness and diligence with which the Honorable Chief Justice has approached this complex matter. Before we lay down the indicia under Article 30 to determine whether an institution has a minority character and ought to be afforded protection, we deem it appropriate to embark on a substantive analysis of the issues involved and will begin by undertaking a comprehensive examination of the multifaceted nature of minority rights both in India and internationally. Then after discussing the international and within India... तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा एएमयू का, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अक़लियती दर्जा जो है वो एएमयू का वो बरकरार रहेगा। तो आज बड़ा दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अब सुना दिया है और ये साफ कर दिया है कि अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और अभी ये फैसला पढ़ा जा रहा था जब हमने आपको दिखाया क्या कुछ इसमें कहा गया। तो एएमयू को अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया गया है। बहुमत से ये फैसला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है यहाँ पर और अक़लियती दर्जा बरकरार रखने की बात साफ कर दी है। तो एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 4-3 के बहुमत से आया है ये बड़ा फैसला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा।
हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा। बिल्कुल ज़रा देखिए, एक बड़ी कामयाबी की तरफ जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, या फिर ये सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ कि वक्तन फवक्तन जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर तोहमत लगाई गई कि ये मुस्लिम इदारा होने की वजह से या इस तरीके की एक इदारा है जिसको सिर्फ मुस्लिमों को तवज्जो दी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत राहत वाला होगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक कह सकते हैं कि एक नेचर रहा है हमेशा से, उस चीज को बरकरार रखा गया है फिलहाल। जी बिल्कुल, क्या कुछ और कहा गया कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर? कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बरकरार रखा गया है? जी बिल्कुल, ये कहा गया है साफ तौर पर कि जिस मकसद से जिन जिन लोगों ने इनको इस इदारे को शुरू किया था, उस इदारे के पीछे के मकसद किसी खास तौर पर एक कौम को लेकर था, लेकिन जब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला उसके बाद से कहीं ना कहीं कहा जाता है हिंदुस्तान के कोई भी शख्स इसमें जो है तालीम हासिल कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं, हालांकि अभी लिखित आदेश आना बाकी है, कोर्ट का किन किन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस किया गया, कुछ देर के बाद वो भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी जरूर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। जी मुबशिर, तो हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए माना जा सकता है। बिल्कुल, काफी बड़ा फैसला जरूर है कि बुनियादी जो कई सारी चीजें थी उनको बरकरार रखा है। इसमें 4 जजों की एक राय है, जिसमें से 3 जज एक राय पर थे, और 3 जजों ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो नेचर है उस यूनिवर्सिटी का उसको बरकरार रखा जाए, और साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में फैले हैं, और खास तौर पर इतनी बड़ी इदारे को अगर उसका मेन नेचर को खत्म कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जरूर होता है, जिसको लेकर जजों ने अपना ये फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल, देखिए काफी वक्त लग गया फैसला आते आते, लेकिन आखिरकार एएमयू के फेवर में ये फैसला आया है और अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा एएमयू का। यहाँ पर जाहिर तौर पर वहां पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा होगा हमें। देखिए, अलीगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खासतौर पर किसी एक कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा दिन है। अलीगढ़ के लिए इतना बड़ा दिन इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि अलीगढ़ अपनी रूह को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है कहीं ना कहीं, और कोर्ट ने उस बात को माना भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप अल्पसंख्यक इदारे का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अलीगढ़ में सिर्फ अल्पसंख्यक ही पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो आज की डेट में कह सकते हैं हिंदुस्तान की We continue our dedication to AMU's legacy of academic excellence, nation building and inclusivity. तो एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है यहाँ पर, और अक़लियती दर्जा जो है वो एएमयू का वो अब बरकरार रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है और 4-3 से ये बहुमत सामने आया। तब वहां पर जो है वो खत्म कर दी गई थी, और 1965 में इस एक्ट में दोबारा संशोधन किया गया, जिसमें जो एएमयू की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है सर, एएमयू का फैसला आने वाला है तो उस वजह से कैंपस के बाहर अलर्ट है सर पुलिस। हाँ, हर जगह। तो 67 में तो 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने ये फैसला दिया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल फैसला जो है वो अभी भी पढ़ा जा रहा है कोर्ट में, और कई टेक्निकल चीजें हैं जो वो बता रहे हैं सीजेआई, तो इन तमाम टिप्पणियों पर भी लगातार नजर जो है रखी जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें को ध्यान में रखते हुए ये फैसला अब सामने आया है, और फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है अंजलि वहां पर। अब से थोड़ी देर में जब फैसला पूरी तरीके से पढ़ लिया जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के मद्देनजर। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि अक़लियती दर्जा जो है एएमयू का वो बरकरार रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और एएमयू के लिए आज बड़ा दिन है।
बाशा वाले फैसले को पलट दिया है, लेकिन एएमयू का स्टेटस क्या है ये फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी। ये जानकारी निकलकर फिलहाल कोर्ट से सामने आ रही है। जैसा मैंने कहा कि लगातार अभी भी फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है और लंबा फैसला है, तो इसमें धीरे धीरे करके कई चीजें जो है उन पर स्पष्टता भी आ रही है। जी तो अंजलि बता रही थी कि क्या कुछ अभी चल रहा है, अभी फैसला पढ़ा जा रहा है और बड़ा फैसला है, थोड़ा वक्त लग सकता है और तमाम जैसे टेक्निकल चीजें हैं जो वक्त के साथ साफ होंगी। जब ये फैसला पढ़ लिया जाएगा तब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते वक्त। लेकिन अब फिलहाल ये साफ हो चुका है कि अक़लियती दर्जा जो है वो एएमयू का बरकरार रहने वाला है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना था कि ये अक़लियती दर्जा देने से मना कर दिया था 2005 में, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था कि 1967 का जो जजमेंट था कि एएमयू को जो है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उस फैसले को फिलहाल पलट दिया गया है। लेकिन एएमयू का स्टेटस क्या होगा ये फैसला 3 जजों की बेंच बाद में तय करेगी। और ये अभी उन 4 जजेस का ऑर्डर है जो बहुमत का हम कह सकते हैं कि इस पर जो फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा था। तो लगातार हमारे सहयोगी अरविंद भी इस समय जुड़े हुए हैं जो कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में ही मौजूद है। अरविंद, अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन कह लें या क्लैरिटी की बात कर लें, क्या कुछ अभी चल रहा है उस पर आप थोड़ी स्पष्टता दीजिए। देखिए 1967 का अजीज बासा केस में एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। और उसमें ये इसके पीछे जो सिद्धांत दिया गया था उस केस में वो ये था कि चूंकि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान हो, इसके लिए जरूरी है कि इसका संचालन, इसका प्रशासन और इसका गठन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से होना चाहिए। यानी उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि कोई भी संस्थान तभी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे सकता है अगर उसका गठन या उसकी स्थापना या फिर उसकी स्थापना के साथ साथ उसका प्रशासन भी अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से हो। आज 4-3 से जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को पलट दिया है। यानी 4 जज इस बात से एकमत नहीं है कि किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा होने के लिए जरूरी है कि उसका गठन और साथ में उसका प्रशासन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में हो। लेकिन जो पर्टिकुलर सवाल था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, यह फैसला अब 3 जजों की बेंच करेगी और 3 जजों की नई बेंच इस पर फैसला लेगी। तो देखिए 3 जजों की बेंच एएमयू के स्टेटस पर फैसला लेगी। तो एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा और तमाम टेक्निकल चीज़ें इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई जा रही हैं। फैसला भी पढ़ा जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ कहा गया है एएमयू को लेकर। अब इससे पहले हाई कोर्ट ने अक़लियती दर्जा देने से इनकार कर दिया था 2005 में। जजों की बेंच इसीलिए बैठी थी। तो अब ये जो 3 जजों की बेंच है, क्या इस तरह से पहले भी हुआ है कि इस तरह से अलग से बेंच बैठाई जाए और फिर उस पर स्टेटस, क्या ऐसा पुराना कोई केस है या मूल मामला जो था वो तो यही था? कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 4-3 के बहुमत से हम अजीज भाषा केस का में जो दिया गया फैसला है उसको पलट रहे हैं, तो उससे एक मैसेज ये गया कि शायद इसका मतलब ये कि एएमयू का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रख दिया है और इसी वजह से उस वक्त खबर भी ये चली। लेकिन बाद में जब आगे फैसला पढ़ा गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं वो 3 जजों की बेंच तय करेगी। और वो 3 जजों की बेंच इस आधार पर तय करेगी जो हमने क्राइटेरिया इस मामले में फिक्स किए हैं, उसके आधार पर 3 जजों की बेंच तय करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। अभी जब लिखित आदेश आ जाएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आज के फैसले से मतलब ये है कि 1967 का जो अजीज भाषा केस था जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया था और उसके लिए एक कसौटी तय की थी कि इसके लिए जरूरी है कि उसका गठन से लेकर के उसका प्रशासन दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हाथ में होना चाहिए, उस व्यवस्था को तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। उसमें उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं वो 3 जजों की बेंच तय करेगी। तो बड़ा फैसला ये सामने आया है एएमयू पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी भी ये फैसला पढ़ा जा रहा है और एएमयू से
जुड़ी तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ये दर्जा देने को लेकर तमाम पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, वो बताया जा रहा है अभी जजेस के जरिए। और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा जब ये फैसला पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा कि क्या कुछ इसमें कहा गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखा गया है, जिन पर फोकस किया गया है। और फिलहाल अभी ये फैसला पढ़ा जाना है और तमाम चीज़ें अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी कि आखिर क्यों ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को पलटा गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अक़लियती दर्जा देने से इनकार कर दिया था एएमयू को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी 2006 में। और आज ये बड़ा फैसला सामने आया है और एएमयू का जो अक़लियती दर्जा है वो बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है। तो 4-3 के बहुमत से ये फैसला सामने आया है और एएमयू के लिए बड़ा दिन है आज, बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एएमयू पर सुप्रीम फैसला आया है सामने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एएमयू अक़लियती इदारा है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ये अभी डिटेल में बताया जा रहा है, क्योंकि फैसला अभी पढ़ा जा रहा है और थोड़ी देर में वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, जिसे देखते हुए ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और एएमयू के अक़लियती दर्जे को बरकरार रखा गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सुप्रीम फैसला यहाँ पर सुनाया है एएमयू के लिए और एएमयू के अक़लियती दर्जे को बरकरार रखा है। 4-3 के बहुमत से ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 से ये फैसला सुनाया है। फिलहाल अभी फैसला पढ़ा जा रहा है। तो एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, ये साफ हो गया है। इस मामले में सीजेआई समेत 4 जजों ने एक राय कायम की है, एक फैसला सुनाया है। हालांकि 3 जजेस ने डिसेंट नोट दिया है। इस मामले पर सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला एक मत हैं, एक राय थी उनकी। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग रहा, यानी कि 4-3 से यह फैसला सामने आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है, यानी अक़लियती दर्जा उसका बरकरार रहेगा, अक़लियती इदारा है वो। अदालत ने 4-3 से यह फैसला सुनाया। 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। और इसी का आधार बनाकर हाईकोर्ट ने इससे पहले एएमयू को अक़लियती दर्जा देने से मना करा था 2005 में, जिसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। अब आज ये बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ मनु के फॉर्मर चांसलर जुड़ चुके हैं, जफर साहब। जफर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जफर साहब, किस तरह से आप इस बड़े फैसले को देख रहे हैं? एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो था ही हमेशा, बीच में वो गलती हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वही जो सुप्रीम कोर्ट का 1967 का जो जजमेंट है जी, उसको ठीक किया है। तो हाँ, इससे एक बात पता चलता है कि भाई हिंदुस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और इसमें एक बात बहुत आना जरूरी है, लोग ये समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का रिजर्वेशन है, जबकि बिल्कुल नहीं है। वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल है। तो इंटरनल यानी जो अलीगढ़ के मातहत की जो स्कूलें हैं उनके बच्चों का एक परसेंटेज है रिजर्वेशन का, और उसमें हिंदू मुसलमान जो भी हों। तो
ये भी एक बात वाजे हुई है कि भाई एएमयू में कभी भी कोई मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं था। हाँ, तो बहुत अच्छा है, यानी मतलब जो है वही चलेगा, बिल्कुल। जी, तो हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर पलटा गया है। इससे पहले 2005 में हाईकोर्ट ने मना कर दिया था अक़लियती दर्जा देने से एएमयू को, और अब ये फैसला पलटा गया है। आपको क्या लगता है किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया होगा? देखिए, जो आर्ग्यूमेंट हुए थे, एक बात तो है कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी कैरेक्टर हुई थी, और जो सवाल जो यही था ना आखिर में, जो कोर्ट में सवाल क्या बना कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं है। दैट वाज द $1 million क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, क्योंकि आप देखिए कोई ये आजकल की बात नहीं है ना, 1920 से है ये, और ये तब से लगातार चला था इसी तरह। और फिर आप अगर आप जाएं पीछे तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको उलट दिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 1981 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। अच्छा, अगर आप देखें उस वक्त ये जो रेजोल्यूशन जो आया था पार्लियामेंट में, तब जनता पार्टी की हुकूमत थी, और उस वक्त सपोर्ट उन लोगों ने भी किया था जो बीजेपी के मेंबर थे। और फिर ये फाइनल हुआ क्योंकि उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, और फिर मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको पास कर दिया था। तो ये तो पार्लियामेंट ने भी मेजॉरिटी से पास किया था एक्चुअली, और उस वक्त जब ये पास हुआ था तो कोई मुखालिफत नहीं थी। और फिर ये 2005 में जो आपने बताया अभी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया था, तो ठीक है, इट शुड बी वेलकम। जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एएमयू में अब किस तरह से हम बदलाव देख सकते हैं? इस बड़े फैसले के बाद कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बदलाव तो है ही नहीं ना, वो तो वही है जो चल रहा था अभी तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी कैरेक्टर था ही जी, तो वो रहेगा। और वैसे भी आप देखिए कि यानी ये जो एक गलत इंप्रेशन आती है कि जैसे वो कोई मुसलमानों का की यूनिवर्सिटी, उसका नाम खाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां भी कोई हिंदू कुछ नहीं है, यहाँ भी ऐसा कोई मुसलमान नहीं है। बल्कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज देखें वहां पर, मेरा तो कई मरतबा जाना हुआ है एएमयू में, तो उनके खास तौर से जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें तो हिंदू मेजॉरिटी है, मुसलमान तो 30-40% है मैक्सिमम। और जो भी बोलिए आप, हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है 10, उसमें अलीगढ़ का 5वां नंबर आता है और सालों से आता है। जी जी, जफर साहब, कोई भी यूनिवर्सिटी को जब ऐसे अक़लियती दर्जा दिया जाता है तो किन मानदंड को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है? क्या कहेंगे इस पर? क्या किस चीजें ध्यान में रखी जाती हैं? देखिए, हिंदुस्तान में 2 यूनिवर्सिटी की स्पेशल स्टैट्यूट से बनी थी, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा भी बहुत सारी माइनॉरिटी, जैसे आपकी दिल्ली में सेंट स्टीफेंसन कॉलेज है, उसका अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर है। तो माइनॉरिटी कैरेक्टर के एक मापदंड हैं पहले से, वो हैं और 100 साल से हैं। तो बस कोर्ट ने वही फैसला किया है कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब से बनी थी और जो इतने सालों में जो कुछ भी हुआ है, तो वो जो कैरेक्टर है, क्योंकि मुसलमानों का बना, ये एक बात तो थी ना कि भाई मुसलमानों ने बनाई थी उस वक्त मुसलमानों की तालीम के लिए, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान ही इसमें पढ़ें। आप देखिए कि बल्कि अलीगढ़ के एल्यूमिनाई में बहुत जबरदस्त तादाद में हिंदू हैं जिन्होंने नुमाया नाम अपना कमाया है दुनिया में। तो हाँ, उसका कैरेक्टर माइनॉरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक डिबेट खत्म हुई, वही है जो चलता था। हाँ, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक काम ये करना चाहिए हमेशा, जो है अभी भी, कि उनका जो स्टैंडर्ड है उन्होंने जो मेंटेन किया इतने सालों से, एक यूं कहिए कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, बस वो बरकरार रखें, उसको मेंटेन करें उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड को। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि तमाम मजहब के लोग वहां से पढ़कर बाहर निकले हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता यहाँ पर, और आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जफर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गया हूँ वहां पर और मैंने देखा है बड़ी तादाद में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं वहां। और जो रिजर्वेशन का जो कोटा है, जो खास तौर से मैं यहाँ लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कोटा नहीं है, यानी जफर सरेश वाला के बेटे को वहां एडमिशन नहीं मिलेगा जस्ट बीइंग मुस्लिम।
वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो वो इंटरनल में बड़ी तादाद में हिंदू बच्चे भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे में। जी जी। और देखिए 1967 में ये जो फैसला लिया गया था, अब उसे खारिज कर दिया गया है। देखिए आज के फैसले को देखते हुए उस वक्त पर क्या कुछ माहौल रहा होगा जो ये फैसला लिया गया है? क्या कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया होगा जब इनकार किया गया था अल्पसंख्यक दर्जा देने से यूनिवर्सिटी को? हाँ, ये 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था। ठीक है भाई, वो भी जज थे, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी फैसला किया, और वही तो एक खूबी है ना हमारे मुल्क की कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था, उसके पास है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो खैर 17 साल लगे, या बल्कि नहीं ज्यादा, 19 साल। जी जी। 19 साल के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस वही कर दिया जो था। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा। एएमयू पर फैसला अब सामने आ गया है, 4-3 के बहुमत से ये फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि 2005 में हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना था, लेकिन इसके बाद उस फैसले को अब पलट दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ ZFI के चेयरमैन जफर महमूद साहब जुड़ चुके हैं। जफर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल सलाम टीवी में। जफर महमूद जी, आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, एएमयू का जो अक़लियती दर्जा है वो बरकरार रहेगा, क्या कहेंगे? जी महमूद साहब, माफ कीजिएगा, हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर MP हैं राज्यसभा के। आपका बहुत इस्तकबाल है अदीब साहब। अदीब जी, आप किस तरह से इस बड़े फैसले को देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? आज के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि अभी अदालत बाकी है, अभी अदालत बाकी है। अगर आप किसी भी मामूली आदमी से, सड़क चलते हुए आदमी से भी अगर आप पूछेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किसके लिए बनी, तो वो यही कहेगा कि मुसलमानों के लिए बनी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, एतमाद हासिल कर लिया है उन सारे लोगों पे जो हिंदुस्तान की अदालत पे यकीन करते हैं। बहुत से कुछ फैसले ऐसे आए जिनसे हमको झटका लगा, लेकिन हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और मुझे हैरत तो ये है कि 4-3 से फैसला हुआ। हम तो ये समझते थे कि 7 के 7 जजेस इस बात को मानेंगे कि वो मुसलमानों ने बनाई थी, लेकिन अफसोस ये है कि 3 जजेस ने इनकार किया है। मुझे नहीं मालूम क्या वजह है जी। लेकिन आज हिंदुस्तान और खासतौर से अलीगढ़ की बिरादरी और सर सैयद के भाई खान और सर सैयद की फौज को रखने वाले लोगों के लिए ईद से ज्यादा बड़ा दिन है। मुबारकबाद देते हैं हिंदुस्तान की अदालत को। जी बिल्कुल। देखिए आखिरकार अब ये फैसला सामने आ गया है और एएमयू के लिए बड़ा दिन है आज। जिस तरीके से अक़लियती दर्जा अब यूनिवर्सिटी का बरकरार रहेगा यहाँ पर, लेकिन इससे पहले इससे दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और 1967 में जो फैसला लिया गया था उसको आधार बनाया गया था। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों उस वक्त इनकार किया गया होगा? मज़ाक़ेज़ जजमेंट था कि साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए माइनॉरिटी करेक्टर नहीं है उसका, या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। तो अगर ये लॉजिक मानी जाए तो फिर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का क्रेडिट आजादी का गांधी और उसके लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को आजादी दी थी। तो ये तो हमने कभी कहा नहीं कि अंग्रेजों ने हमें आजादी दी। हमें आजादी तो गांधी और गांधी के लोगों ने दी थी ना। ऐसे ही उन्होंने फैसला कर दिया था कि साहब अलीगढ़ एमओ कॉलेज तो मुसलमानों ने बनाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, और यूनिवर्सिटी बनने के लिए बगैर गवर्नमेंट के कैसे बन सकती है, ये जजमेंट था जिसके ऊपर आज हम 50-60 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। आज उसका फैसला हुआ, और फैसला भी ऐसा हुआ है कि जिसपे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये राइट होगा कि वो कह सकें कि ये उनका इंस्टीट्यूशन है, और उनको इस बात का अख्तियार होगा कि वो अपनी एक सर्टेन परसेंटेज को मेंटेन करें। और जब आप किसी करेक्टर को मेंटेन करते हैं
तो माइनॉरिटी शुड बी इन द मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी में, फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। मेरी जवानी में हिंदुस्तान में जब देश कभी कोई इनॉग्रेशन होता था, कोई चीज खोली जाती थी तो फीता कटता था। और अब क्या होता है, नारियल फूटते हैं, भजन गाए जाते हैं और लेट लेट के और पूजा की जाती है सेकुलर मुल्क में, क्योंकि मेजॉरिटी का जो इम्पैक्ट है वो दिखता। तो अगर आपको कोई करेक्टर को मेंटेन करना है तो उस करेक्टर को मेंटेन करने के लिए उस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सनद दे दी है। और मैं समझता हूं कि वो सारे लोग जिसमें ये माइनॉरिटी का। सर आपको रोकना चाहूंगे यहाँ पर। अजीज बादशाह वाला केस था, उसको ओवररूल किया और कहा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है। हालांकि ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि अब इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो एक रेगुलर 3 सदस्य बेंच है बनेगी जो डिसाइड करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवररूल कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर सी बात इसके लिए तमाम तारीख़ी हवाले मौजूद हैं कि किस तरीके से पहले सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद साहब ने कमेटी के सामने पूरी बात रखी थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए इदारा बनना चाहिए। फिर किस तरीके से मदरसतुल उलूम कायम हुआ, उसके बाद किस तरीके से ख़ुद सर सैयद ने उस मदरसतुल उलूम को एक कॉलेज में तब्दील किया। और अपनी स्पीच में उस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस कॉलेज को एक दिन यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। और सर सैयद ने यह भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले सकें। लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ासकर आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के अपने 1967 के फैसले को ओवररूल कर दिया गया है। क्या लगता है मौलाना साहब कि 1967 के जो फैसले को ओवर रूल कर दिया है अब आगे का रास्ता यानी कि एमयू के लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डूज एंड डोंट्स हैं अगर उसके ऊपर वो मानक के अनुसार रहेगा तो माइनॉरिटी स्टेटस मिलने में तो कोई परेशानी नहीं होनी। नहीं, यकीनी तौर पर आज के इस फैसले के बाद हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब इस सिलसिले में जो भी माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में राहें हमवार हो गई हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट और इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट मनु के जुड़ चुके हैं अख्तरुल वासे साहब। बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। अख्तरुल साहब, आप क्या कहेंगे इस बड़े फैसले पर? सुप्रीम कोर्ट ने जो एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रखने की बात साफ कर दी है। देखिए, ऐसा है कि मैं इस वक्त जो हूँ जयपुर में हूँ, कर्नाटक, तो मैं उसका कदम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत नया फैसला किया है और अलीगढ़ के पुराना किरदार जो है उसके बहाली की जो बात की है वो गैर मामूली है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद फिर नई बेंच क्यों सुनवाई करेगी
ये समझ में हमारे पास नहीं है। मैं जस्टिस बी चंद्रचूड़ को मुबारकबाद देता हूँ और उनके साथियों को उन्होंने फैसला किया है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए 3 जजों की जो नई बेंच है वो आगे का फैसला लेगी। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इसमें कितना बदलाव हम देख सकते हैं, क्योंकि नए सिरे से अब ये तमाम चीजें रखी जाएंगी? फैसला हो जाने के बाद 4 जजों का होने के बाद फैसला क्यों किया ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके लिए समझने वाली बात है ये बहरहाल देखना पड़ेगा। लगता फैसला है। जी बिल्कुल। देखिए जब किसी भी यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा दिया जाता है तो कौन कौन सी चीजों को सबसे अहम उन्हें माना जाता है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला होता है? बड़ा फैसला होने में कोई शुबा नहीं है। बड़ा फैसला और बिल्कुल मुनासिब है। जितनी बात एहतियात की कही जा रही है वो ये कि जब एक हो गया तो फिर बाद में दूसरी बेंच के हवाले करने की क्या तुक है? जी जी तो ऐसे में आपको लगता है क्या जिस तरीके से जो नए रूल्स बनाए जाएंगे इसको लेकर अब उसमें क्या कुछ होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जो किरदार रहा है 1951 में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और लोगों ने मिलकर जो फैसला किया था उसको बाकी रखना चाहिए। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अख्तरुल वासिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर इस वक्त एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और आगे का फैसला 3 जजों की बेंच करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। इसका फैसला अब 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। अब क्या कुछ उसमें होता है, क्या कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें बनाए जाते हैं, ये अहम होगा। लेकिन फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि एएमयू का अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा, जो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। एएमयू के लिए एक बड़ा दिन है आज। इतना वक्त लग गया इस फैसले को आते आते, करीब 19 साल लग गए, क्योंकि 2005 में हाई कोर्ट ने मना कर दिया था अक़लियती दर्जा देने से। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था और अब आज ये फैसला सामने आया है। 1967 का आधार मानते हुए 2005 में मना कर दिया गया था दर्जा देने के लिए, जिसके बाद अब उस फैसले को खारिज कर दिया गया।